آپ کو براہ راست گجرانوالہ لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور تمام قومی اسمبلی کے اراکین الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں گجرانوالہ کے مزدوروں سے بھی یکجہتی کرنا چاہتا ہوں جن کی دہاڑیاں کچھ دنوں سے ماری جا رہی ہیں۔ ان کاروباری حضرات سے بھی ہم یکجہتی کرتے ہیں جن کا کاروبار اس فسادی مارچ کی وجہ سے متاثر ہوا، اور وہ طالب علم جن کے اسکول اور کالج بند ہیں، آج تیسرا دن ہے مسلسل، ان سے بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کا نقصان ہوا۔ سارا نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس فسادی مارچ کی ساری پذیرائی ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جس طریقے سے یہ مارچ رینگ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اب چند فرلانگ مارچ بن گیا ہے کہ چند فرلانگ چلتے ہیں، یعنی کل جو ہے وہ آدھے شہر کا مارچ تھا اور آدھے شہر پہ آگے ختم ہو گیا، اور جو فسادیوں کا سرغنہ ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں اور کارکنوں کو سڑکوں پر در بدر ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جس رفتار سے یہ فرلانگ مارچ رینگ رہا ہے، جب تک یہ اسلام آباد پہنچے گا تو غالباً انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی، کیونکہ 12 اگست کو قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے اور انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں عام انتخابات ہوں گے، اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہوس اقتدار کا مارچ ہے کہ ایک فاشسٹ فسادی سے جب ہم نے ایک آئینی طریقہ اختیار کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار اس سے لے لیا ہے، تو وہ فاشسٹ فسادی پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اس پھڑ پھڑانے میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ 2014 میں چائنا کے صدر نے اسلام آباد آنا ہو تو یہ فسادی اسلام آباد میں دھرنا دے دیں۔ آج جب وزیر اعظم شہباز شریف اسی چین کے صدر سے جس نے اسلام آباد آنا تھا، آج انہوں نے ملاقات کی ہے، تو جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم چین کے صدر سے ملاقات کر رہا ہے، یہ فسادی پھر سڑکیں روک کر بیٹھا ہوا۔ تو ہم نے تو اپنا ترقی کا کام جاری رکھنا ہے، اور گجرانوالہ کے شہری انہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے یہ فسادی حکومت آئی ہے، گجرانوالہ کے ہسپتال بدحال ہیں، گجرانوالہ کے سکول لاوارث ہیں، گجرانوالہ کی سڑکیں تباہ حال ہیں، ضلع اور شہر میں ترقی کا عمل 4 سال سے رکا ہوا ہے۔ اگر یہ ہوس اقتدار مارچ، جو کہ اب قاتل مارچ بن چکا ہے، آج صبح ایک اور کارکن جو ٹرک سے گرا تھا وہ وفات پا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خاتون صحافی صدم نعیم عمران خان کے کنٹینر کے ٹائروں تلے آ کر کچلی گئی ہیں، اور یہ بھی کارکنوں کا قتل بھی اس فسادی لیڈر کا ریکارڈ ہے۔ ملتان میں آپ کو یاد ہوگا گرمی سے بدحال درجنوں کارکن ہلاک ہوئے،
स्टेज की कार्रवाई 1 मिनट के लिए भी रोकी नहीं गई। और अब जबकि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं, तो मैं सराहत से ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल, औलाद और कारोबार की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद में आईनी इदारों के जो मराकज़ हैं उनकी हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर तो ये रेंगते हुए इस्लामाबाद पहुंचकर अमन से बैठते हैं, हम पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर अमन कायम रहता है तो आ जाएं। लेकिन ये अमन कायम करने आए नहीं है। ये हम सब के लिए परेशानी और फिक्र की बात होनी चाहिए कि फसादियों के सरगना की गुफ्तगू में हमेशा तशद्दुद की धमकी होती है। दो ज़बानी है, एक तरफ कहते हैं कि अब पुरअमन रहेंगे, दूसरी तरफ इनके लोग कहते हैं बंदूकें इकट्ठी करो, तैयारी करो। और तशद्दुद से हम पहले भी निमटे हैं। मैं आपके तवज्जुह से याद कराना चाहता हूं कि 2016 में भी आर्मी चीफ की तकर्री से 4 हफ्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए यही फसादी टोला इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था 30 और 31 अक्टूबर को। और अटक के पुल पर एक बाकायदा घुमसान का रन पड़ा था। ये इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है। इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि 2014 में इनके कारकुनों ने डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था। इनका रिकॉर्ड है कि इस फसादी जमात के लोगों ने दर्जनों इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और एहलकारों की हड्डियां तोड़ी थी, उनको जदोकोब किया था। यह इस फसादी जमात का रिकॉर्ड है कि इन्होंने बुलडोजर लेकर पार्लियामान का जंगला गिराया था। तो वो लोग जो इस्लामाबाद पर हमलावर चाहे अटक पुल से हुए या डी चौक में हुए, ये इनका रिकॉर्ड है। इमरान खान का रिकॉर्ड तशद्दुद का रिकॉर्ड है। लेकिन वफाकी हुकूमत पुरअज़म है, हमारी तैयारी है। अगर तो ये अमन से इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं और वहां बात करना चाहते हैं, सिर्फ इस पर मुज़ाकरात होंगे कि इनका मार्च अगर तो पुरअमन रहने की हमसे बात करना चाहता है और किसी चीज पर यह वसीउल बुनियाद वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे जो कि 12 अगस्त 2023 तक है, और जिन्हें इंतखाबात की जल्दी है उनके पास मुल्क की 4 इकाइयों में हुकूमत मौजूद है। पंजाब असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील क्यों नहीं कर देते? गिलगित बल्तिस्तान। और हम एक सियासी तौर के ऊपर इस्तेहकाम की तरफ बढ़ चुके होते, इसीलिए कहते हैं कि कोर्ट्स को सियासी मसाइल में नहीं आना चाहिए। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली वो फैसला हुआ और उसकी कीमत हम आज तक अदा कर रहे हैं, लेकिन अब भी वक्त है इदारों को अपने फैसलों में तस्दीक करनी चाहिए और अवाम के साथ आके खड़े हों ताकि इदारों की इज्जत जो है वो बहाल रहे। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को फौरन लेने चाहिए। मैं सिर्फ वाजे करना चाहता हूं कि मुल्क में अगर कोई तनाव है तो वो उन चंद 100 मीटर में है जहां से ये फसादी मार्च गुजर रहा है। बाकी पूरा पाकिस्तान पुरअमन है और हमारी तवज्जो तो सैलाब ज़दगान की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मुईशत की बहाली पर है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल करने पर है। हमारी तवज्जो और जो काम आज शहबाज शरीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात इमरान खान ने तबाह किए थे उसको दोबारा बहाल करने पर है। लेकिन इस मुल्क में अमन कायम रहेगा, जमहूरियत कायम रहेगी। और जो ये कहता है, शायद वो दुरुस्त कहते हैं कि मार्शल लॉ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई कैसे फर्क पड़ेगा? आप तो मार्शल लॉ के रेफरेंडम की हिमायत कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसके रेफरेंडम के जलसों में अपने झंडे लेकर शरीक हो चुके हैं। आपको तो मार्शल लॉ से फर्क नहीं पड़ता, फायदा होता है। लेकिन कौम को यह फर्क पड़ेगा और इसीलिए हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हमें इस मुल्क को इस्तेहकाम देना है, इस मुल्क के सियासी मामलात में एक ठहराव लेकर आना है। तो अगर तो मुल्क का अमन, मुल्क में ठहराव इनका एजेंडा है तो बात कर लें। धमकियों से, तशद्दुद से शहरियों की जिंदगियों को तबाह करके तो ये फाशिस्ट मकासद हम हासिल नहीं होने देंगे। हम मज़ामत करेंगे, गुजरांवाला मज़ामत करेगा। मैं आपको ये भी याद करा दूं, आप में से बहुत से हजरात उसके गवाह हैं कि किस तरह 20 अक्टूबर 2020 को पीडीएम का पहला जलसा था और यही जगह जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके चारों तरफ कंटेनर लगा दिए गए कि अवाम किसी भी तरह जिना स्टेडियम तक न पहुंचे। लेकिन अल्लाह ताला के करम से गुजरांवाला के शहरी बहादुर हैं, हिम्मती हैं, गैरत वाले हैं। शहरियों ने अपनी ताकत से ये कंटेनर उठाकर फेंक दिए और एक फकीदुल मिसाल जलसा जमहूरियत के लिए किया। ये वही पीडीएम है जो आज अल्लाह ताला के करम से हुकूमत में है और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रही है। ये फसादी और फाशिस्ट चैलेंज जो कि अब एक फरलांग मार्च तक महदूद हो गया है, ये अपने काम जारी रखें। इनका काम दिया बुझाना है, हमारा काम दिया जलाना है, वो हम जारी रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा मौक़िफ़ ये है, अगरचे बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बैनर पर जो तहरीर थी मैं बोल देता हूँ। मेरा चैलेंज है, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया। तो जिसमें हिम्मत है आ जाएं। ये कमाल करते हैं। ये जिस इजहारे राय, ये बात बड़ी अहम है, इजहारे राय की आजादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरांवाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी बैनर लगा सकते हैं, वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। तो चोर को चोर कहना इजहारे राय की आजादी है। जो आइन जिसका एहतराम करते हुए हम इनको इजाजत दे रहे हैं
कि ये हर किस्म की लग़्व गुफ्तगू करें, वही आइन हमें भी इस शहर के रहने वालों को भी इजाजत देता है कि वो ये बैनर लगाएं कि घड़ी चोर नामंजूर है, तोशाखाना का चोर नामंजूर है, 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। जी नहीं, मैं बैनर्स मैं सिर्फ वजाहत से कहना चाहता हूं कि मेरा बैनर लगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो बात अभी मैंने की है मैं उस पर खड़ा हूं और फिर दोहरा देता हूं, घड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर, 56 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि हमें 2023 के अक्टूबर के महीने में जो होने वाले इंतखाबात हैं उन्हें साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक बनाना। उस तरफ हम जा रहे हैं। जो सारे इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं वो घड़ी चोर मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा सर, ये है कि राणा सनाउल्लाह साहब प्रोग्रामों में बैठ के ये कह रहे हैं कि 40 से 50 लोग जो हैं, इससे ज्यादा नहीं है लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर इतने लोग हैं तो पूरा इस्लामाबाद क्यों बंद किया हुआ है? रेड जोन एरिया जो बढ़ा दिया गया है, करोड़ों रुपया वहाँ पर जो है वो सेलिंग नीति जा रही है। इस हवाले से 40-50 लोगों के लिए इतना इंतजाम नहीं, उन्होंने मैं दुरुस्त कर दूं, उन्होंने 40-50, उन्हें 4 से 5 हज़ार लोग कहे हैं। नहीं, आज तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है 40 से 50 लोग। तो वो जो इस्लामाबाद, मैं फिर दोहरा देता हूँ जी, आपकी समा खराशी होगी, लेकिन फिर कह देता हूँ कि इस्लामाबाद में रहने वालों की जान, माल और औलाद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सफारत खानों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आइनी इदारों की जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। एक फाशिस्ट फसादी चैलेंज हमारे सामने है, लिहाजा उसमें हम एहतियात कर रहे हैं, हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह मैं फिर कह देता हूँ, अगर ये पुरअमन तरीके से वहाँ जाना चाहते हैं और तशद्दुद की धमकियाँ देना बंद कर दें तो आकर बैठें। 126 की बजाय 252 दिन बैठें। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू यही है कि जब भी ये बात करते हैं इसके नीचे एक तशद्दुद की धमकी होती है जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पिछला धरना भी इसी तरह। आपको बताएं कि वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि गुजरावाला नून लीग का किला है। बदतरीन और मुश्किल हालात में भी गुजरावाला की आवाम ने नवाज शरीफ का साथ दिया। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।